ہوگا کہ جس طرح آج پورے ملک کے محب وطن لوگوں کو یہ فکر لاحق ہے کہ حکمرانوں نے اپنے خصیص مفادات اور اقتدار کی لالچ میں ملک اور ملک کی عوام کو جس بھیانک سمت دھکیلا ہے، جس کا اختتام تباہی اور بربادی نظر آ رہا ہے، اس سے ملک اور عوام کو کس طرح بچایا جائے۔ اسی طرح 1947 سے پہلے انگریزوں سے آزادی کے ہلچل کے دوران یہ مسئلہ درپیش تھا کہ ایک نئے آزاد مسلم ملک میں شامل مختلف کلچرز، زبانیں اور ریت و روایات رکھنے والی قوموں کو ایک ملک میں شامل ہونے کے لیے کس طرح راضی کیا جائے اور ملک کو کس فارمولے کے تحت متحد رکھا اور چلایا جائے۔ برسوں کی سوچ بچار اور بحث و مباحثے کے بعد 1940 میں قرارداد لاہور کی شکل میں مسلمانان ہند کو قائد اعظم محمد علی جناح اور دوسرے مسلم اکابرین نے یہ فارمولہ دیا کہ پاکستان میں شامل ہونے والی ریاستیں آزاد اور خود مختار ہوں گی۔ اس جملے کا بنیادی مقصد تھا کہ مرکز کے پاس محدود اختیارات ہوں گے اور صوبے بااختیار ہوں گے۔ اس فارمولے کے تحت بنگالی، سندھی، بلوچ اور پشتون قومیں پاکستان میں شامل ہوئی تھی اور بنگالی، سندھی، بلوچ، پشتون اور پنجابیوں کو یقین دہانی تھی کہ ریاستیں اور صوبے خود مختار ہوں گے، مگر حکمرانوں نے پاکستان بنتے ہی اس بنیادی فارمولے سے انحراف شروع کر دیا اور قائد اعظم کی وفات کے بعد تو 1940 کی قرارداد کو ماننے سے بھی اعلان یا انکار کیا گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آدھا ملک ہم سے جدا ہو چکا ہے۔ بلوچستان کے عوام ملک سے علیحدگی کے لیے ہتھیار بند جدوجہد کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ، بلوچستان اور قبائلی علاقوں میں روزانہ سینکڑوں انسان ڈرون حملوں، خودکش حملوں، بم دھماکوں، ٹارگٹ کلنگ سے لقمہ اجل بن رہے ہیں اور حکمرانوں کے کان پہ جون تک نہیں رینگ رہی۔ ملک کی عوام کو روٹی، کپڑا اور مکان کا جھانسا دینے والی پیپلز پارٹی نے سندھ کے عوام کو روٹی، کپڑا اور مکان دینے کے بجائے گزشتہ دریائی اور برساتی سیلاب زدگان کروڑوں سندھیوں سے روٹی، کپڑا اور مکان چھین کر انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے۔ سیلاب زدگان کے لیے آنے والی کھربوں ڈالروں کی امداد اور ترقیاتی فنڈز کھا کھا کر حکمران وڈیرے ڈائنوسار بن گئے ہیں۔ صحافی دوستو، ملک 1970 جیسے حالات سے دوچار ہے اور ملک کے حکمران سب خیر ہے کہ نعرے لگاتے ہوئے کرسیوں سے چمٹے ہوئے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ ہم ملک کے عوام، خصوصاً سندھ کے عوام کو خبردار کرتے ہیں کہ بے حس حکمران جو کہ دولت اور اقتدار کی خاطر مفاہمت کی آڑ میں اپنے شہید قائدین کے قاتلوں کو گلے لگا سکتے ہیں اور کرسی اور دولت کے مقابلے میں عوام، قوم، وطن اور مستقبل جن کے لیے بے معنی ہیں، ان سے کسی قسم کی امید رکھنا بے سود ہے۔ انہن حکمرانن نئے بلدیاتی نظام تحت پولیس، ریونیو صحت سمیت سجا اہم کھاتا مفاہمت کے نالے تے پانچے اتحادن کے حوالے کرے چھڑیا ہیں۔ انہن اتحادن کے حوالے جے ہر مسئلے جو حل گولی یا ملیٹنسی کے سمجھن تھا، اہڑی طرح عملاً سندھ پیپلز پارٹی کی اتحادی MQM کے حوالے آئے۔ بلدیاتی الیکشن بلدیاتی نظام کے آڑ میں کراچی، حیدرآباد، مشرف کے دور جیاں مکمل طور تے جنہیں ہوا دہشت گردن کے حوالے ہوئی، اج بھی انہن کے حوالے آئے ऐं हिकिड़े नए बलदियाती निज़ाम आणण जी तयारी पई कई वञे जंहिंमें पुलिस जहिड़ो अहम इदारो उन्हनि मक़ामी अदालतुनि, मक़ामी निज़ाम जे नाले में इत्तेहादी पार्टी जे हवाले हूंदो। हिन प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रिए असीं इहो वाज़िह था कयूं त सिंध पुलिस, रेवेन्यू ऐं हेल्थ शहरी हुकूमत जे हवाले थियण खे रद्द थी करे ऐं अवामी तहरीक मुतालबो थी करे त बिना देर टेबल ते पधरो कयो वञे त पीपल्स पार्टी MQM सां मक़ामी निज़ाम जे हवाले सां कहिड़ी ॻाल्हि ॿोल कई आहे ऐं हुन जो इख़्तियार कीअं ॾिनो आहे उन्हनि खे। صحافی دوستو، عوامی تحریک فوری مطالبہ کر رہی ہے کہ بلدیاتی نظام کے نام پر سندھ کے لوگوں پہ کوئی وار برداشت نہیں کیا جائے گا۔ 22 مئی کو لیاری میں محبت سندھ ریلی کے دوران جو 14 عاشقان سندھ شہید کیے گئے، ان کے قاتلوں کو بھی ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا اور جو قاتل ابتدائی طور پر
गिरफ्तार किए रेंजर्स ने और पुलिस ने, उनको रहमान मलिक साहब ने छुड़वा दिया। दोस्तों, मुझे कत्ल करने का मंसूबा तैयार किया गया और उसके इंकशाफात भी हुए, मगर अभी तक वफाकी हुकूमत ने और सिंध हुकूमत ने न तो उन कातलों के टोले को गिरफ्तार किया है, न हमसे कोई राब्ता किया है कि अवामी तहरीक को किसी किस्म की सिक्योरिटी की जरूरत हो तो उसकी तकमील की जाए और हमारे मरकजी फाइनेंस सेक्रेटरी गुल हसन कीड़ानो के, सिंध के होम डिपार्टमेंट, आईजी पुलिस सिंध, चीफ मिनिस्टर सिंध को ऑफिशियल खत लिखने के बावजूद कि हमें सिक्योरिटी के लिए लाइसेंस्ड वेपन्स दिए जाएं और इंतजामिया को हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की हिदायत की जाए, अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया। पानी की कमी की वजह से सिंध कहत ज़दा है। सिंध जी पुछड़ीअ जा आबादगार तबाह बर्बाद थी विया आहिनि। वडेरा जेको थोरो घणो पानी सिस्टम में मौजूद है उनके टेल एंड्स तक पहुंचण नथा ॾियनि। ऊपर से कैनाल से सारा पानी वडेरे रोक लेते हैं, बाअसर पीपुल्स पार्टी के हुक्मरानों के एमएनएज और एमपीएस रोक लेते हैं और करोड़ों काश्तकार और किसान बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। कराची में टारगेट किलिंग जारी है, रोजाना दर्जनों बेगुनाह इंसान कत्ल किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब लियारी में फरमाइशी ऑपरेशन भी जारी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से जो टारगेट किलर पकड़ा जाता है उसे मीडिया और आवाम के सामने लाए बगैर खास तौर पर वफाकी वजीर रहमान मलिक की मुदाखलत पर रिहा कर दिया जाता है। आए दिन वजीर अजम पेश होगा न होगा, वजीर अजम खत लिखेगा न लिखेगा के ड्रामे बर्पा करके गुज़िश्ता 4.5 सालों से मौजूदा हुक्मरान एक नूरा कुश्ती के तहत मुल्क के लोगों को इन मसाइल में उलझाकर उनसे उनकी तवज्जो लोड शेडिंग, बेरोजगारी, लाकानूनियत और महंगाई से हटाए हुए हैं। नई वोटर लिस्टें बनाने की आड़ में 13 लाख सिंध के असल बाशिंदों के वोट खारिज कर दिए गए हैं और 13 लाख बंगालियों, बिहारियों, अफगानियों, बर्मीज के बोगस वोट दाखिल किए गए हैं और 13 लाख गैर मुल्कियों के वोट दाखिल करके सिंधियों को अक़लियत में तब्दील करने की कंप्यूटराइज साजिश तैयार की गई है। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन और हुकूमत पाकिस्तान तस्लीम कर चुकी है कि कराची में 13 लाख बोगस वोटों का इंदराज है। उसके बावजूद उन बोगस वोटों को खारिज करने के लिए कोई अमली कदम नहीं उठाया गया। मुझे पिछले दिनों नादरा के सरबराह ने मुझसे राब्ता करके मुझे दावत दी कि मैं उनकी ऑफिस का विजिट करूं इस्लामाबाद में। मैंने उनको भी लिखा है कि नादरा मुल्क में बोगस और बाहर के आए हुए लोगों के, मुख्तलिफ इलाकों में आए हुए लोगों की जो रजिस्ट्रेशन का अमल है उसको रद्द करे और जबकि खारिज किए गए लाखों सिंधियों के वोटों के इंदराज का तदारक किया जाए। जुल्फकार आबाद मंसूबा सिंध को मुकम्मल तौर पर खत्म करने के लिए बनाया जा रहा है। जुल्फकार आबाद को पहले शहर, दूसरे मरहले में सूबा और फिर मुल्क बनाने की प्लानिंग है। जो आलमी ताकतों और उनके दलाल हुक्मरान और दहशतगर्द इत्तेहादी पार्टियां भी उस मंसूबे में शामिल हैं। जुल्फकार आबाद को सिंध के लोग और पाकिस्तान के 19 करोड़ लोग कभी कबूल नहीं करेंगे और किसी आलमी ताकत को यह इजाजत नहीं देंगे कि वह पाकिस्तान के इलाकों पर कब्जा करके उसको अपनी सैटेलाइट कॉलोनी बनाए। सिंध की तालीम को मुकम्मल तौर पर तबाह किया जा चुका है। हजारों प्राइमरी स्कूल बंद हैं, लाखों घोस्ट स्कूल मौजूद हैं। अफसरान बाला तालीम के लिए आने वाले करोड़ों अरबों रुपए खा चुके हैं। यूनिवर्सिटियां दहशतगर्द और नाअहल लोगों के हवाले कर दी गई हैं। सहाफी दोस्तों, इंतहाई अफसोस के साथ आपको बता रहा हूं और पाकिस्तान के लोगों को बता रहा हूं कि सिंध में आज पीपुल्स पार्टी ने, हुक्मरानों ने हर नौकरी बिकाऊ बना दी है, हर तबादले का रेट मुकर्रर है, हर जिले में एक सरकारी कमीशन एजेंट है, हर डिपार्टमेंट खुद और उसके अंदर एक कमाऊ पूत है, हर तरक्याती मंसूबे का 90% ऊपर ही ऊपर से खाया जा रहा है। आपके तवस्सुत से बैरून मुल्क बसने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों और पाकिस्तान के दूसरे अजला, पंजाब, पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अजला में बसने वाले लोगों, ओवरसीज सिंधी तंजीमों
साना, वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस, सपाक, वर्ल्ड सिंधी इंस्टीट्यूट और दूसरे मोहब्बे वतन पाकिस्तानियों और सिंधियों को मैं बताना चाह रहा हूं कि सिंध 65 साल के बदतरीन समाजी, मुआशी और सियासी बहरान का शिकार है। लाकानूनियत अपने उरूज पर है। सिंधी खवातीन, सिंधी हिंदू, सिंध के सिंधी और उर्दू बोलने वाले मासूम बच्चे, किसान और मजदूर हर रोज मरते हैं और हर आने वाले कल को मरने के लिए जिंदा रहते हैं। उन तमाम मसाइल के हल के लिए अवामी तहरीक सिंध की वो वाहिद सियासी पार्टी है जो एक तवील जदोजहद का आगाज कर चुकी है। 15 जुलाई के उस जलसे में कराची में जाकर हमने उस जदोजहद को मजबूत किया और ये यकीन दिलवाया कराची के लोगों को कि सिंध के 6 करोड़ लोग कराची के तमाम बाशिंदों को अपना हिस्सा, अपने जिस्म का एक अहम हिस्सा और नुक्ता समझते हुए सिंध के तमाम लोग बरसरे मैदान होंगे। दोस्तों, हम सिंध के वतन दोस्त, जमहूरियत पसंद सियासी पार्टियों, सिविल सोसाइटी के लोगों, वकीलों, सहाफियों और मोहब्बे वतन लोगों से अपील करते हैं कि वो नाअक्बत अंदेश हुक्मरानों के घिनौने खेल से सिंध को और मुल्क को बचाने के लिए मैदान में आए। साथियों, उन वक्त पाकिस्तान ने सिंध में 1970 जड़ी सूरत हाल है। सिंध जा करप्ट वडेरा ऐं वज़ीर, MNAs ऐं MPAs बैंक बैलेंस ठाहिण में मसरूफ़ आहिनि। उन सूरत हाल में असीं उम्मीद था कयूं त ईंदड़ इलेक्शन्स में सिंध जा क़ौम परस्त ऐं सिंध जा क़ौमी दर्द रखंदड़ सुजाण माण्हू गॾिजी इलेक्शन विढ़ंदा। गुज़िरियल 65 सालनि खां अवाम खे धोखो ॾींदड़ माण्हुनि खे, गद्दार ऐं करप्ट वडेरनि खे दीवार सां लॻाए पंहिंजा हक़ीक़ी उम्मीदवार चूंडींदा। अवामी तहरीक आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवस्सुत से सिंध के लोगों के साथ होने वाली इन ज्यादतियों के खिलाफ कल 29 अगस्त को उमरकोट में मोहब्बत सिंध रैली निकाल रही है। आपके इल्म में होगा कि इससे कबल हम अपर सिंध के तमाम अजला में लाड़काना, घोटकी, जेकबाबाद, खैरपुर, दादू, शिकारपुर, उन तमाम अजला से होते हुए अब हम सिंध के इस डेजर्ट वाले अजला की तरफ जा रहे हैं और इस सिलसिले में कल 29 अगस्त को उमरकोट में रैली होगी, जिसके बाद 1 सितंबर को झुड्डो, डिगड़ी, नौकोट, टंडो जान मोहम्मद, फजल भंभरो में रैलियां निकालकर अवामी जलसे आम मुनक्किद करके सिंध के अवाम को अपना किरदार अदा करने के लिए दावत दी जाएगी। सहाफी दोस्तों, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा कोई नेशनलिस्ट और प्रोग्रेसिव और तरक्की पसंद पार्टी 6 सितंबर को कराची से इस्लामाबाद तक मोहब्बत सिंध ट्रेन मार्च शुरू करने जा रही है। अपने कमजोर मुआशी मसाइल के बावजूद, लोअर क्लासेस के उन वर्कर्स की मेंबरशिप के बावजूद जिनके पास 3 टाइम खाने को नहीं है और जो अपने महीने की बजट से 2-2, 3-300 रुपए निकालकर 2200 रुपए वाली रिटर्न टिकट खरीदने पे मजबूर हैं, जिनको रास्तों में खिलाने के लिए वडेरे नहीं है, जिनके लिए एयर कंडीशन पार्लर नहीं है, जिनके लिए फर्स्ट क्लास स्लीपर नहीं है, वो सिंध के हजारों लोग 6 सितंबर को रास्ते में आलू और छोले की 1 पाव बिरयानी वाली थैली खाते हुए बगैर लाइट और बगैर पानी की ट्रेन में अपने वतन और अपनी कौम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नारे लगाते हुए, पैगाम आवाम तक पहुंचाते हुए 6 सितंबर को इस्लामाबाद की तरफ ट्रेन मार्च करेंगे और वहां पहुंचकर पाकिस्तान के अहले इक़्तिदार को बताएंगे कि सिंध सुलग रहा है। सिंध के साथ वो हशर मत करें जो बंगालियों और बलोचों के साथ किया गया। और फिर जब पानी सर से गुजर गया तब कहा गया कि इनका मसला हल करना चाहिए था। जैसे अब आप कह रहे हैं बलोचों के बारे में, पहले जब बलोचों को सुने जाने का वक्त था, उस वक्त नवाबों और सरदारों को हुकूमत में नुमाइंदगी देकर कहा गया कि बलूचिस्तान के सरदार हुकूमत में बैठे हुए हैं, उन सरदारों को सब मिल रहा है, वजीर आला भी बलोच है, वजीर भी बलोच है, तमाम नुमाइंदगी बलोच भाइयों की है, क्या जरूरत है बलोचों के साथ बात करने की, उनके सरदार तो हमारे साथ हैं। अब भी यही पॉलिसी दोहराई जा रही है। कहा जाता है आपका सिंधियों का सदर बैठा हुआ है, आपके वजीर आला हैं, आपके स्पीकर बैठे हुए हैं, आपकी नुमाइंदगी तो है। वो नुमाइंदगी तो बलोचों की भी थी,
बंगाल का उस वक्त के मशरकी पाकिस्तान का वजीर आला भी कोई सिंधी और पंजाबी और पश्तून तो नहीं था, बंगाली ही था, और मरकज में उनके वजीर आजम भी रह चुके हैं। मगर उन वडेरों और वजीरों और सरदारों और ऊपर के तबके के लोगों को नुमाइंदगी देने से आम बंगालियों और बलोचों का मसला तो हल नहीं हुआ। सदर पाकिस्तान भले सिंधी हो या कोई भी हो, वो नुमाइंदगी अपने मफादात की करते हैं, उनका सिंध से कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए पाकिस्तान के लोग सोचें, और हम ये सोच पैदा करने के लिए, बेदार करने के लिए 6 सितंबर को इस्लामाबाद जा रहे हैं। मैं आपके तवस्सुत से सरकार को वार्निंग देता हूं कि अगर 15 जुलाई की तरह हमारा रास्ता रोकने की कोशिश की गई तो आप जानते हैं हम पहुंचते तो हर हाल में हैं। हमने 6 सितंबर की ट्रेन मार्च के लिए 6, 7 और 8 सितंबर की 7 ट्रेनों में टेंटेटिव एडवांस बुकिंग करवाई है, क्योंकि हमें रहमान मलिक साहब के मिशन का पता है। जिस तरह उन्होंने 22 मई को कंटेनर लगा के हमें शहीद करवाने के लिए माहौल पैदा किया, और 15 जुलाई को मेरे गिरफ्तारी के वारंट निकाल के 22 अजला की पुलिस को मुझे गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। इसलिए 6 सितंबर से 7 सितंबर तक 7 ट्रेनों में हमने बुकिंग करवाई है। हमारे साथ 3,500 के करीब सिंध के किसान, मजदूर और सिंधियानी तहरीक और SC/ST की खवातीन होंगी। अगर रास्ता रोका गया तो रेलवे की पटड़ियों पर, स्टेशनों पर, सिंध के तमाम शहरों पे फिर दमादम मस्त कलंदर होगा, और फिर कोई गद्दार वडेरा, कोई MNA, कोई MPA, कोई वजीर, अगर हमें नहीं चलने दिया गया, हमें इस्लामाबाद नहीं जाने दिया गया, तो फिर कोई सिंध में तहरुक नहीं कर सकेगा, कोई सिंध के रस्तों से महफूज होकर गुजर नहीं पाएगा। अवामी तहरीक मुतालबा करती है, जो कि इस ट्रेन मार्च के मुतालबे भी हैं, कि मुल्क में फौरी इलेक्शन का ऐलान किया जाए, गैर जानिबदार टेक्नोक्रेट सेटअप मुकर्रर किया जाए, कराची को एक रास्ती बोर्ड हथियारों से पाक किया जाए, 22 मई की मोहब्बत सिंध रैली के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए, सिंध में करप्शन और लाकानूनियत का खात्मा किया जाए, पानी की किल्लत दूर कर कर फसलों को तबाह होने से बचाया जाए, सैलाब मुतासरीन लोगों को प्लाट और तामीर का खर्चा देकर और रोजगार देकर उनको आबाद किया जाए, मिलिटेंट दहशतगर्द तंजीमों पर पाबंदी लगाई जाए, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस किस्म का इंतजाम करे कि जिस तंजीम में JIT की इन्वेस्टिगेशन के तहत ज्वाइंट इंट्रोगेशन टीम की तहकीकात के मुताबिक जिन तंजीमों में मिलिटेंट विंग्स हों, उनको 15 दिन का मौका देकर उनको कहा जाए कि अपने मिलिटेंट्स पेश करें कानून नाफिज करने वाले इदारों के सामने, अदरवाइज उनको इलेक्शन लड़ने पे बैन लगा दिया जाए, और सिंध के बेरोजगार नौजवानों को गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में हंगामी तौर पर 20 लाख मुलाजमतें दी जाएं। दोस्तों, सिंध पाकिस्तान और 19 करोड़ लोग खतरे में हैं। ये रीजन खतरे में है। 6000 साला सिंध की सकाफत, मोहनजोदड़ो, भंबोर और हड़प्पा की सिविलाइजेशन खतरे में है। हम तमाम लोगों से अपील करते हैं कि अवामी तहरीक की पुरअमन जमहूरी जदोजहद में साथ देकर 19 करोड़ लोगों का मुस्तकिल बचाएं, और हम पाकिस्तान की अदलिया से खुसूसी गुजारिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और सिंध हाई कोर्ट सिंध में जो लाकानूनियत है, जो अगवा बराए तावान है, जो डाके हैं, जो हर प्रोजेक्ट पे करप्शन है, और जो कराची में टारगेट किलर्स को खुली छूट है, और जो कराची में अरबों रुपए के हथियार मौजूद हैं और लोगों को चुन चुन के मारा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट से सिंध के 6 करोड़ और पाकिस्तान के 19 करोड़ लोग सवाल पूछते हैं कि बाकी तमाम मौजुओं पे तो आपका जुडिशल एक्टिविज्म हर रोज नजर आता है, मगर सिंध के जिंदगी और मौत के मसले पर, सिंध में पानी की कमी पर, और सिंध में बेरोजगारी पर, और सिंध में 73% गैस और 59% पेट्रोल और कोयले और बंदरगाह देने के बावजूद सिंध के लोग भूखे क्यों मर रहे हैं, उस पर पाकिस्तान की अदलिया को नोटिस लेकर सिंध के लोगों के मसाइल के हल के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। शुक्रिया।